श्रद्धा। श्रद्धा, आप अपने बारे में पैनल को जो भी आपको लगता है इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं, 2 मिनट तक बताइए। Sir, good afternoon. My name is Shraddha Joshi. I belong originally from Jaipur, Rajasthan. I have completed my graduation from Delhi University, and I've done my bachelor's in physics honors. And currently, I've been preparing for UPSC examination. This is my first attempt, and I have been possessing some qualities such as discipline, consistency, which have led me here in this mock interview today. And apart from that, I'm quite dedicated towards my work, towards my studies, and looking forward very much to the UPSC examination. आपकी जो श्रद्धा, in 12th you have scored 96%. In class 10th you have scored equally well, 92.8%. But suddenly there is a decline in your bachelor's. So what could be the possible reasons for that? Uh, so when we study in school, there's a holistic study going on there. We have a support system of our teachers who nurture us personally. They give their personal experiences to us. But when it comes to college, it maybe there's a shift of the environment that we stay in or we study. So maybe that was kind of a shift for me from a very personal environment to a very professional environment, and it took me a little time to adjust in there. Also, it was a time of COVID. I spent my 1.5 years at home. My classes were online, so I didn't get that exposure enough so that I could have focused more on my studies and have had a good start. So maybe that was a backlog, which further pushed me. Okay. Uh, you have written honors in your BSc. So what is the difference between a regular BSc and an honors one? So a regular BSc contains all the three subjects, particularly maths, physics, chemistry, or if you're from biology, you can take a biology. But when we talk about honors, it's about a specialization in a subject that you're taken. Like for example, what the subject I took was physics honors. So when I had my subjects in the semesters, all of those subjects were basically focused on physics itself. And there were very little there were no parts of chemistry and biology or other subjects in it. Uh, Shraddha, given your physics honors background, uh, how will your this academic background help you in becoming a good civil servant? So physics is basically a subject that teach you to explore. When we had our physics teachers in college, they told us to explore our subject, to explore things in an environment. And what a civil servant must do is explore and observe around the environment. The quality of observing the environment and then finding a solution to that problem is what we do in physics. And I think that's the same trait a civil servant must possess. If we want to serve the society, we must learn to observe the society, explore the society, learn about the problems of the society, and then find a solution. As you know, we do a lot of big calculations and derivations in physics, and these are pretty tough. And same goes with the problems of the society. You need to explore your options. You need to try everything, and then come to a conclusion that yes, that works best with my problem. So I think that quality will help me being a civil servant also. Uh, can you tell me the names of some of the physicists from India who have got Nobel prizes? Physicist from India. India or Indian origin? Nobel prizes. Yes, in physics. Or are there none? No, sir, there may be, but I'm not currently, I cannot recall my facts right now. Give me at least one name. Sir, Bose, Einstein, the statistics, we have Bose, Einstein statistics, so the Bose was from India. No, we have Bose Einstein condensate, that state of matter thing, but he didn't get any Nobel Prize for that. Okay. Sir, I can't recall right now at the moment. Have you heard of Sir C.V. Raman? Yes. Did he get any Nobel Prize? Sir, I cannot recall that did he get a Nobel Prize or not. I recall his name. Okay, okay, ठीक है. Uh, there is a talk that there are very few women in the STEM subjects or in the STEM discipline. So have you heard of the term STEM? What is the full form of that term? STEM. STEM, STEM. What kind of disciplines or subjects does it stand for? Sir, I'm not aware of it. Okay. This is your first attempt, UPSC. So you have written mains. Yes. What was your optional? Sociology.
Sociology. So why didn't you go for physics and why sociology? Sir, as I said that I had already studied physics once in my graduation, and I wanted to have a new subject so that I could check on my personality and I could gain a lot more experience about the subject. And a civil servant is one who need to deal with the society. So I guess I need to know the society first well so that I could serve it. Three. Okay, please. Shraddha, English translation faith. Sorry. Yes. English translation is faith. Yes, sir. तो किस चीज में सबसे ज्यादा faith है आपका? Sir, I believe in hard work. I believe that there are things in your destiny, but even if they are not, you can do your hard work and achieve them. So I think that's my biggest faith. Even if I'm preparing for UPSC, my faith will be always in my hard work and what I do for it. आपने अपने डीएफ में सर्विस प्रेफरेंस में जब आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए ऑफ कोर्स होम स्टेट आपने राजस्थान रखा है, बट आपका लीस्ट लाइकली प्रेफरेंस है जोन 2, और उसमें भी जो लीस्ट लाइकली स्टेट जहाँ पे आपने मार्क किया है वो है बिहार. मैं रीज़न जानना चाहूँगा. Sir, as such, there is no such reason. It's just my personal preference that I would like to think of it as. Because out of all the states that were mentioned in the DEF, I thought I could serve well in that society. I could serve well to the society because I'll adjust well there. And I think on my personal qualities that I won't be able to adjust more there. So that was like my last preference. Have you visited Bihar ever? Not really, sir. How would you know that you will not be able to adjust in Sir, Bihar? I've been to that belt of Uttar Pradesh. I've been to near Uttar Pradesh. So maybe I thought that zone particularly of Uttar Pradesh, Jharkhand, and Bihar. That zone is something I'm not more comfortable with, and I think I'll serve my best if I'm comfortable in the environment I'm serving. So for that reason, And if you get posted to Bihar somehow and you unfortunately you get the cadre of Bihar only, then So then that's fine. It's okay. It's just a preference that I had to put in. So I had to put something at the last. If not this, then something else. So I thought that this was my option. and in police services your last preference is Tripura. Oh, Nagaland, sorry. So why Nagaland then? So Nagaland is kind of an island state, I mean union territory right now, and I don't think the law and order situation there needs that much attention or that much force. And on the other hand, if we talk about the zone 2 now, I think in this police services I've mentioned Is the zone Nagaland a union territory? 2. Yes, sir. श्रद्धा, आप सीकर से हैं? जी सर. क्या सीकर प्रिंसली स्टेट था? सर सीकर वॉज नॉट एग्जैक्टली अ प्रिंसली स्टेट, बट येस देयर वाज अ किंग जो हमारे राजा थे कल्याण सिंह जी, and they also have their family home right now. There's SK College, SK School, SK Hospitals after his name. So yes, it was a princely. श्री कल्याण. श्री कल्याण जी. सीकर का नाम सीकर क्यों है? सर सीकर का नाम सीकर क्यों है? सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट फैक्ट, सॉरी. पिताजी बिजनेसमैन है. जी सर. यहाँ पे बिजनेस पर्सन लिखा जाना ज़्यादा ठीक होता? Yes sir, it would have been a better option. क्यों होता better option? So we cannot just stick to that dogma of calling business man only, because it's kind of a norm कि हम usually business को man से ही attach करते हैं, ना कि women से, and that is one of the reasons we are lacking in our women entrepreneurs. So yes, if we see the fact like that कि हम उसको man हटा के person लगा दें, तो वो ज़्यादा effect negative वे में नहीं जाएगा, but positive वे में काफ़ी effect करेगा वो. फिजिक्स से ऑनर्स है. जी सर. फिजिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है वो बेटर समझते हैं आप? जी सर. एनर्जी और पावर में क्या डिफरेंस है? सर एनर्जी और पावर में क्या डिफरेंस है? यू नीड द फॉर्मुलेशंस और. आप यूँ समझिए कि मुझे नहीं पता, मैं साइंस का आदमी नहीं हूँ. ठीक है सर. अब मुझे आपको समझाना है कि दोनों में क्या है. सर किसी भी काम करने के लिए जो हमें ताकत चाहिए होती है उसको हम एनर्जी कहते हैं, या फिर जो हमें मतलब पावर. नहीं, ताकत नहीं. किसी काम को करने के लिए हमें जो एक चीज़ चाहिए होती है, हम कह सकते हैं क्या? जैसे गाड़ी को चलाने के लिए हमें एक फ्यूल चाहिए होता है, दैट्स पेट्रोलियम.
Similarly, when we are working or we are making an action, we need some force. उसको एनर्जी कहते हैं, और उस एनर्जी को आप कितनी इंटेंसिटी पे यूज़ कर रहे हो उसको हम पावर कहेंगे, कि आपने उस एनर्जी को कितनी इंटेंसिटी से यूज़ करके कितना ज़्यादा काम। आपका मतलब है इंटेंसिटी का मतलब रेट? यस सर, इंटेंसिटी इज़ द रेट। कोई राशि कब दर बन जाती है? रेट कब बनता है? सर रेट तब बनता है जब रिपीटेडली कोई चीज़ हो रही है। रिपीटिशन किसी को रेट बनाता है? सर कैन यू पार्डन द क्वेश्चन, आई डिडंट गेट द क्वेश्चन। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये प्रति महीना, पर मंथ, ये क्या है? इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट, हाँ तो कोई भी राशि हो, रेट कब बनती है? सर जब वो परसेंट में होती है आई गेस। ठीक है। वर्क की डेफिनेशन क्या होती है? सॉरी सर, कार्य की क्या परिभाषा होती है? वर्क एज इन फिजिक्स और इज इन जनरल सर? सर फिजिक्स के अंदर वर्क इज पावर अपॉन टाइम। पावर अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है या डेफिनेशन? ये फॉर्मूला है, एंड द डेफिनेशन गोज लाइक कि आप कितने टाइम में कितना काम कर, कितनी पावर से काम कर रहे हैं, उसको आपने कितना काम किया है कि प्रति 1 सेकेंड के अंदर, उसको आप वर्क कहेंगे। कितना काम किया, ये तो एनर्जी। सर कितना काम किया नहीं, कितना काम किया है वो तो वर्क ही होगा, वर्क करने में कितनी वो लगी एनर्जी उसको हम एनर्जी कहेंगे, वो फॉर्मूला वाइज चलता है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? सर वर्क इज इक्वल्स टू पावर एनर्जी अपॉन टाइम। सॉरी, आई नीड टू रीचेक इट। मान लीजिए आप वहाँ बैठे हैं, आप वहाँ से चल के यहाँ आए, देन यू वेंट बैक टू योर चेयर। ओके सर। कितना वर्क किया आपने? सर आई एक्सप्लेन, आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन। मान लो मैं कोई काम कर रही हूँ, मैंने उसमें ई एनर्जी लगाई और टी टाइम तक लगाई, तो टी टाइम तक एनर्जी, ई एनर्जी लगाने तक मेरा जो काम हुआ है उसको मैं डब्ल्यू वर्क कहूँगी। जैसे अगर मैं ई एनर्जी लगा के वहाँ तक जा रही हूँ और वापस आ रही हूँ और मुझे 4 सेकेंड लग रहे हैं, तो उस एनर्जी को जब मैं अपने टाइम से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो मेरा वर्क निकल के आएगा। एनी डिफरेंस बिटवीन वर्क और वर्क डन? वर्क एंड वर्क डन, सर फिजिक्स के अंदर अगर हम स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ में जाएं तो देयर मे बी अ डिफरेंस, बट एज फार एज इन जनरल तो नहीं होता है। सो वर्क इज़ नॉर्मल, जो हम एक आपने वर्क करना है या हो गया, या जब डब्ल्यू नो जनरल जो वर्क होता है। वर्क डन इज़ जो काम हो चुका है, जो कंज्यूम हो चुका है, जो एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है, जो टाइम जा चुका है, उसको हम वर्क। प्रूव करो कि टीवी देखना काम है। सॉरी सर? प्रूव कीजिए कि टीवी देखना काम है। सर टीवी देखना काम ऐसे है बिकॉज आपको जब आप टीवी देख रहे हैं, यू सिटिंग एट सम पोजीशन, तो आपकी जो बॉडी के अंदर, मान लो आप खाना खा के बैठे हो, तो देयर मस्ट बी सम एनर्जी जो कि कंज्यूम हो रही है, और वो एक टी टाइम, जितने टाइम तक आपने टीवी देखा है वो टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, तो एनर्जी और टाइम साथ साथ जब कंज्यूम हो रही है, दैट मीन्स देयर इज अ वर्क डन देयर। हायर एजुकेशन में नहीं गए आप लोग आगे? नो सर। कारण? सर अभी मैंने ग्रेजुएशन इसी साल कंप्लीट किया था, एंड मेरा टारगेट यूपीएससी कंप्लीटली था। आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन माई फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। कोविड के राइट बाद में, मैं जब लॉकडाउन घर पे था और हमारी ऑनलाइन क्लासेस थी, सो दिस काइंड ऑफ फैसिनेटेड मी, तो मैंने रिसर्च किया इस पे, एंड आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फ्रॉम होम ओनली। तो 4-5-6 महीने के लिए मैंने घर से पढ़ाई की, एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू कॉलेज। तो उसके बाद मेरा ये था कि मुझे इसी को ही परस्यू करना है आगे, सो आई विल कंप्लीट माई ग्रेजुएशन बिकॉज दैट्स द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस एग्जाम टू सिट। So yeah, that's why I didn't pursue the further studies. And what's the plan B? So plan B is I've been giving other exams too. I've given my SSC CGL this time. तो मेरा प्री क्लियर हो गया है, अभी मैं मेंस लिखूंगी दिसंबर के अंदर। सो या एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत शानदार है आपकी। शानदार। लीडरशिप कैंप अटेंड किए आपने हैं? जी सर। लीडरशिप के लिए क्या क्या एसेंशियल क्वालिटीज होनी चाहिए आपके अनुसार? Sir, I think for a leader, he must be compassionate, he must have patience, and he must have that ability to listen to others more and speak less. Because अगर वो खुद ही बोलता रहेगा और अपने चारों तरफ नहीं सुनेगा, तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। आप कहना चाहते हैं कि जो नेता ज़्यादा भाषण देते हैं वो नेता नहीं होते? जी सर। डिबेट कंपटीशन जीता है श्रद्धा आपने, यस सर। क्या इसको मैं ऐसे भी परसीव कर सकता हूँ क्योंकि आप अच्छा बोल लेती हैं और दूसरों को नहीं बोलने देती हैं, तो आप डिबेट कंपटीशन इसलिए जीत गई? No sir, that was a proper debate. We had our times. सबको अपना अपना टाइम दिया गया था. We had our topics. I was speaking for my given time. So we cannot say that thing because I give others chance. I listen them more and I speak less. What was the topic of the debate, the final stage, जहाँ पे आप कंपटीशन जीत के आई?
So it was a long time back, so I cannot recall that right now. It was in my grade 9, so it was like 7 to 8 years back. लीडरशिप के बारे में जैसे अभी आपने बताया कि लीडर कौन होता है, क्या क्वालिटीज होती हैं, ऐसा कोई लीडर आपकी नज़रों में इस वक्त जिनको लीडर नहीं होना चाहिए था पर वो फिर भी लीडर बन गए हैं? Sir, as in any field? एनी फील्ड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, Can I also speak in politics? एनीवेयर. Okay. Just I need a moment to think. Sir, I think Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of Israel, for me, I don't think he has the leadership quality. Why? So, first of all, he is not compassionate for others. The world we are living in right now, we are. It's not just your country, but it's also the other people living around the world. You need to also think about them, because leader अगर आप बनना चाहते हो, तो it doesn't mean you'll just be the leader of your own people. You have to be leader of all people. अगर हमें हमारे benefits देखने हैं, that doesn't mean we have to hamper the lives of other people. And Mr. Netanyahu is somewhere not thinking about others, or if we say the other countries that he's in war with. So I think he lacks compassion, and he is very adamant, and that is not a quality a leader should have. So that Is he adamant. somewhere better than the supreme leader of North Korea? Yes, sir, he is better than the supreme leader of North Korea. But I don't think he is a leader, Kim Jong-un, the king of North Korea, because he was not chosen a leader. He got that position by chance because of the family lineage. So I don't think him as a leader, so I didn't keep him in that race. So, yeah. So you're fond of photography, right? What is the full form of DSLR? So I cannot recall that. And you like watching movies as well? Yes, sir. Which was the first Indian movie? So first Indian movie was Bharat Mata, I guess, something like that. I cannot recall that completely. Is there any Indian movie which has won IFA awards? IFA awards. Yes, sir. There have been so many movies that I've. Recently, name one. Sir, recently, Lapata Ladies, I guess. They debuted for the Oscars at this time. What is the difference between cardio and strength exercises? So, cardio exercise is basically done to enhance your stamina, and strength goes on for your muscle building. Like I do both. I go for gymming, so I do muscle training also, and I do cardio also. Cardio is more an active exercise, and muscle training is more of a passive. Is there any relationship between strength exercises and increasing cardiac arrests? So there can be some linkages. We can say that that can be a reason, but not necessarily. Yes, there is. Because when we do strength training, it is kind of connected with the weights you lift. Sometimes there may be a situation when you lift a lot of weight that is out of your own efficiency, and that may lead to uneasiness or the cardiac arrest that we're talking about here. So yeah, if we do not do it like under good supervision, or we do it excessively, then it can be proven to be one of the reasons. Oh, that's wrong. This is because the muscle strength that we train for, when muscle gets enhanced, when we take proteins and the muscle size increases, that suppresses the veins and the arteries that goes to the heart. So that is also one of the reasons. That is the prime reason for most of the cardio arrest that is the youth they are suffering with. श्रद्धा थोड़ा सा स्पेसिफिक्स पे बात करते हैं. आपने जो फर्स्ट चॉइस भरी है ना, IAS नहीं भरी है, आपने कौन सी भरी है? IFS. भरी है, ऐसा क्यों? Sir, I am more inclined towards the foreign services because of the diplomatic relations. I have my keen interest in global geopolitics. So yeah, I would like to Your work keen in interest in that. geopolitics. ठीक है. भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कौन है आज की तारीख में? Foreign secretary or foreign minister? फॉरेन सेक्रेटरी Sir, Vinod Gaba, I guess. विनोद. Gauba. ठीक है. और फॉरेन मिनिस्टर कौन है? Mr. S. Jaishankar. अच्छा, इनकी कोई बुक का नाम बताओ. फॉरेन मिनिस्टर. Bharat Matters. भारत मैटर्स. ठीक है. और
I can't recall other than that right now. आपका डिबेटिंग में इंटरेस्ट है ना? आपने कोई मूवी देखी है डिबेटिंग के ऊपर, हॉलीवुड बॉलीवुड की? सर डिबेटिंग के ऊपर द ग्रेट डिबेटर्स का नाम सुना आपने? नो सर. नहीं सुना है. आपने अमर्त्य सेन का नाम सुना है? कौन है अमर्त्य सेन? Sir, Amartya Sen is a eminent economist of our country. He has contributed a lot to the economy of our country. I guess, He lives in India? sorry, Does he live in India? no, right now I'm not aware that if he lives in India or इनकी किसी किताब का नाम बताइए जो डिबेटिंग से रिलेटेड है. not. Amartya Sen. Sir, I'm not aware of it. आपने द आर्गुमेंटेटिव इंडियन का नाम सुना है? No, sir. किताब का नाम नहीं सुना आपने? Sir, I have not had that much exposure right now because, अच्छा, आप नॉन फिक्शन पढ़ती हैं, आपने लिखा है, तो नॉन फिक्शन फिक्शन से कैसे अलग है? sir, non-fiction is books that does not have stories. It's kind of it's non-fanatic. And fiction book के अंदर you create fantasy stories or maybe some other stuff. लेटेस्ट आपने नॉन फिक्शन कौन सा पढ़ा है शिवानी? Sir, right now I'm reading. Right now, currently, I've started The Alchemist by Paulo Coelho. ये तो बहुत बेसिक स्टार्टिंग है ना, ये तो, और ये तो फिक्शन है, नॉन फिक्शन. नहीं सर, नॉन फिक्शन है. पाउलो कोएल्हो एल्केमिस्ट द अल्केमिस्ट जो किताब है वो क्या रियल लाइफ पे बेस्ड है? नो सर, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द. सो इज इट अ फिक्शन और नॉन फिक्शन? सर, we can say it as No, non. we cannot say. Fiction means what? Is it something which is based on real life or what? Fiction is not based on real life, basically. तो कोयलोस जो बुक जिसकी आप बात कर रही हैं ना, फेमस द अल्केमिस्ट, वो तो कोई रियल लाइफ पे बेस्ड नहीं है. सेंटियागो की जो कहानी है, Yes sir. Yes. ठीक है, वो तो फिक्शन है ना, Yes. मेड अप स्टोरी है, तो फिक्शन हुआ, नॉन फिक्शन कैसे हुआ? आपने तो कहा आप तो नॉन फिक्शन पढ़ना पसंद करती हैं ना? Yes sir, like the self-help books. सेल्फ हेल्प बुक्स, ओके. It kind of helps नाम in बताएं. motivation. Sir, I've read Attitude is Everything by Jeff Keller. Then I have read Ikigai. Then I have read Meera Chadha Burwankar's. There's one book that I have read. I cannot recall the name. She's a retired IPS officer. कहाँ से रिटायर हुई बोरवांकर जो आपने? महाराष्ट्र से. महाराष्ट्र से. महाराष्ट्र कैडर में थे वो. अच्छा, और बताएं. और सर शशि थरूर की कोई किताब पढ़ी है आपने? आपका तो इंटरेस्ट है ना? I don't know. I don't like his genre actually. अच्छा, यू डोंट लाइक हिज जॉनर. अच्छा, आपने देखिए अपने लेफ्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रीडिंग, नॉन फिक्शन, डांसिंग इन लीजर टाइम, फिर आपने लिखा कैजुअल ब्राउजिंग. ये कैजुअल क्या होता है? So casual browsing is something that does not intend to end somewhere. Does it reflect a person's casual approach towards his life? Sir, not really. If you have your time, if you have free time and you need to explore something, I think casual browsing is a good option because when in the earlier times there used to be no option of the internet. लोग ज़्यादातर किताबें पढ़ के इधर उधर घूम के लोगों से बातें करके अपना टाइम बिताते थे and they used to learn a lot of good lessons through it. आजकल casual browsing का एक option है जो हम use कर सकते हैं, but it's important what you're browsing at that moment. If you're just scrolling on the reels, it's not important to do or it is not fruitful. But if you're browsing good things like you can browse the government websites, you can browse different people about their lives, about their stories. So yeah, it kind of helps you to develop your personality. US में recently we've seen that a new government has come into power. Yes sir. US में. So will you call it a leftist government or a rightist government? Sir, I'll call it a rightist government. Rightist government. Because उनका approach is quite मतलब वो काफ़ी Is it good to be a leftist or a rightist? Or both are good? So both are good. It depends. The difference between the two? Sir, in general, like in literal meaning, leftist and rightist were given to the government. जो parliament building हुआ करती थी, उसमें जो government in position हुआ या जो in government जो थी, वो right में बैठते थे, तो उनको हम rightist कहते थे. And the opposition used to sit in the left side, so we used to call that the leftist government. So there is no other difference. उनको इधर बैठा दिया, उनको इधर बैठा दिया. Ideological terms में क्या mean? Ideological terms में sir, right
winger, they are more, if we talk about India, what I have observed in our governments in leftist and rightist wing, तो जो हमारी right winger government है, they are more focused towards uniting India, and मतलब इनके जो अब schemes and policies भी हैं, their जो manifesto है इनका, या जब भी ये रैली के लिए करते हैं, जब भी कैंपेन करते हैं, तो ये काफ़ी रिलीजन बेस्ड होता है, काफ़ी सेंटर्ड होता है अराउंड द कास्ट कम्युनिटी एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल. एंड जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, बट आजकल लेफ्ट वाले भी यही कर रहे हैं, दे आर क्वाइट आइडियोलॉजिकल. यहाँ पे ज़्यादा आपको दिखने को मिलेगा कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, वो आपको लेफ्ट विंग गवर्नमेंट में ज़्यादा देखने को मिलती है, बिकॉज वी हैव बीन रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स फॉर लाइक सो मेनी ईयर्स. तो वो जो एक टेंडेंसी ब्रिटिशर्स ने छोड़ी थी उस टाइम पे, तो वो लेफ्ट विंग गवर्नमेंट के अंदर छोड़ी थी, तो कहीं ना कहीं उनके. चलिए, श्रद्धा, आपने बात किया बेंजामिन नेतन्याहू की बात की, आपने कहा आपके हिसाब से आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं उस हिसाब से वो लीडर क्वालिफाई नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सबके बारे में नहीं सोचते हैं. तो इंडिया की पॉलिसी में हम लोग बात करते हैं ना कि सब लोग के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या है वो टर्म जो हम लोग यूज़ करते हैं G20 वगैरह में? सर वासुदेव कुटुंबकम. कुटुंबकम क्या मीनिंग है उसका? सर द वर्ल्ड इज आवर फैमिली. वर्ल्ड इज द वर्ल्ड इज आवर फैमिली. आवर फैमिली, ठीक है, क्या मीनिंग है उसका? सर उसका मीनिंग ये है, इट वाज आल्सो द टैगलाइन ऑफ आवर G20 समिट दैट हेल्ड इन दिल्ली दिस ईयर. उसका वी नीडेड टू इंटरप्रेट कि द वर्ल्ड अराउंड, वी ऑल आर जस्ट वन फैमिली, वी नीड टू लिव विद कंपैशन, वी नीड टू थिंक अबाउट ईच अदर, हमें साथ में आगे बढ़ना चाहिए, and we should not be doing anything that is at the expense or at the cost of some other country or the other people. एक लास्ट क्वेश्चन, आप बैठी हैं पैनल में, ठीक है, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन से ब्राइट लोग हैं, IIM से भी हैं, है ना, बाहर से भी पढ़ के आए, स्टैनफोर्ड से भी पढ़ के आए, मे बी आजकल आते हैं लोग. सिंगल मोस्ट क्वालिटी, अगर आपको एक क्वालिटी देखनी है, वो सिंगल मोस्ट क्वालिटी क्या होगी जिस पे आप निगोशिएट नहीं करेंगे? नेगोशिएट नहीं करूँगी. चाहिए ही चाहिए उसमें सिविल सर्वेंट में. सो द कॉन्फिडेंस. चलिए, कॉन्फिडेंस कम ज़्यादा भी हो सकता है. आफ्टर कॉन्फिडेंस, लाइक कॉन्फिडेंस के अलावा कौन सा क्वालिटी जिस पे आप निगोशिएट नहीं करेंगे? अब उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो गांव से आया है, रूरल बैकग्राउंड से आया है, मे बी ही इज नॉट दैट कंफर्टेबल, तो क्या विल यू पेनलाइज दैट पर्सन फॉर दैट? नो सर, नॉट, बट सर क्वालिटी है sir, I think the ability to learn, because when we see a life of a civil servant, he needs to constantly keep learning and working on himself, only then he can best serve the society. आपकी टीम है ना, आपको अपनी टीम में लोग चाहिए, किस तरह के लोग आप नहीं लेंगे? सर जो प्रोक्रेस्टिनेट करते होंगे, अच्छा, या जो लेजी होंगे, जो एक्टिव नहीं होंगे. लोग हैं जो बहुत एक्टिव है ना, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, फास्ट वो ग्रास्प करते हैं चीज़ों का, कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, फिर भी आप उनको नहीं लेंगे अगर उनमें वो क्वालिटी नहीं है तो? सर ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, है ना, पैकिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर वो आएगी ना, बाकी तो सेकेंडरी चीज़ें हैं. इट्स जस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ माइंड एक्चुअली. एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया है उजलो फाउंडेशन. उजलो यही उजालो. उजालो, यस सर, इट्स अ मारवाड़ी टर्म. मारवाड़ी तो उजलो होता है. उजालो सर, लाइट. उजालो कहते हैं ना हम, वो उसको हमने एज ए यूज़. उजालो या उजाड़ो? उजाड़ो. उजाड़ो. यस सर. कुछ अभी नया ऐड किया है हिंदी में? हिंदी में नहीं सर. ये जो बोल रहे हो ना, पढ़ा है, इसको हिंदी में ऐड किया गया है. अच्छा. ये पहले हिंदी में नहीं था. आपने एट्रोसिटीज के अगेंस्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, यस बताएंगे क्या किए? सर बेसिकली ये जो हमारा फाउंडेशन था, इट वाज एन NGO जो हम बच्चों ने स्टार्ट किया था, एंड उसका जो मेन मोटिव था, इट वाज कि हम हमारे आसपास जितना कुछ हम सर्व कर सकते हैं हम करेंगे. तो हमारे 5 प्रोजेक्ट्स थे जिन पे हमने काम किया है. मिशन नारायणी, मिशन स्वच्छता, मिशन जिसमें हमने 5 चीज़ों को बेसिकली टारगेट किया था. मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल हाइजीन, एजुकेशन, क्लीनलीनेस, एनिमल वेलफेयर एंड यस, दैट वाज द प्रोजेक्ट्स. ये 4 प्रोजेक्ट थे. तो इसमें हम जो हमारे आसपास, जो ऐसे हमारी कॉलेज जो थी वो धोला कुआं पे थी, तो हमारे आसपास जितने भी कच्ची बस्तियाँ थी, हमने वहाँ पे कच्ची बस्तियों को अडॉप्ट कर रखा था. देयर इज एज अ फाउंडेशन कॉल्ड SFS जो कॉलेजेस में यूजुअली होती है,
तो उनके साथ कोलैबोरेट करके हम उनको अडॉप्ट करते थे जो कच्ची बस्तियाँ थी, एंड वहाँ पे रेगुलर एजुकेशन प्रोग्राम्स रन करते थे। जैसे कि वहाँ में जितने भी बच्चे हैं उन सबका डेटा कलेक्ट करके, और रोज़ शाम को हमारे 2 से 3 वॉलंटियर वहाँ जाते थे और क्लास लेते थे, ताकि हम उनको कुछ भी थोड़ा बहुत सिखा सकें। उसके अलावा मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर कैंपेन्स चलाना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, फंड्स इकट्ठा करके लोगों में, जैसे जो औरतें थी वहाँ की जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में नहीं जानती थी, उनको उस चीज़ के बारे में अवेयर करना, उन्हें चीज़ें सिखाना, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन में जो नए प्रोडक्ट्स हैं जो हम उनको बता सकते हैं जो कि ज़्यादा हेल्दी है, उसके बारे में हमने उनको सिखाया, उन्हें उसका यूसेज दिखाया। तो हमने इन सब चीज़ों पे काम किया। उसके अलावा हमारा जो एरिया था जिसमें हमारा कॉलेज था, वो काफ़ी ही मतलब पल्यूटेड एज इन रहता था, मतलब गंदगी बहुत थी। तो उसके लिए हम काफ़ी मतलब वहाँ पे वो चलाते थे, जैसे मिशंस वगैरह चलाते थे कि किसी भी वीक को एक संडे को हम फिक्स करते थे, और जो भी एक एरिया में टारगेट करना होता था हम वहाँ जा कर के क्लीनलीनेस ड्राइव करते थे। तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन भी हो जाता था, और हमारा जो एक मोटिव था कि हमें सर्व करना था, वो भी हम करते थे। तो जो हमारे बच्चे जिनको हमने अडॉप्ट कर रखा था, उनकी स्कूल्स में अगर कोई दिक्कत आ रही है, उनको अगर कोई दिक्कत स्कूल से मिल रही है, या उनकी पढ़ाई में अगर कोई सीरियस बच्चा है जो पढ़ना चाहता है सही में, तो उसको हम गाइड करते थे। जैसे फेस्टिवल्स वगैरह पे मेरा घर जैसे होम टाउन सीकर है, तो मैं वहाँ जाती थी, तो उस टाइम पे जैसे फेस्टिवल है और हम उनके पास नहीं जा पाते, तो हम वीडियो कॉल पे उनको लेते, उनके लिए खाना भिजवाते, हर संडे को स्पेशल ब्रेकफास्ट रखवाते। एनजीओ के लिए फंडिंग के मेन सोर्सेज क्या थे? सर एनजीओ के लिए फंडिंग के मेन सोर्सेज जो हमारे इसके फाउंडर्स थे, वो खुद अपना पर्सनल ही यूज़ करते थे, एंड उसके अलावा कुछ यूथ लीडर्स थे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, जो उन्हीं के नोन के थे, जो उस चीज़ को क्या आप फंड कभी गए हो करते फंड कलेक्ट करने के लिए? थे। नहीं सर, दैट वाज नॉट माय पार्ट। वो पार्ट पूरा फाउंडर्स के पास में था, जो ये प्रोफाइल था, एंड आई यूज्ड टू मैनेज द वर्किंग प्रोफाइल, द वॉलंटियर्स, द प्रोजेक्ट। फिलहाल सीकर में एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में पीएम ने मन की बात में जिक्र किया था, नाम बता सकते हो संस्था का? सर आई कैन नॉट। शैतान सिंह कविया का नाम सुना है? शैतान सिंह कविया? नहीं सर। आपके सोशोलॉजी थी। यस सर, यस सर। थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट को आप सबसे पहले कहाँ देखते हैं? थ्योरी ऑफ सोशल हिस्ट्री के किस फेज में देखते हैं? थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट सर, कोई बात नहीं, ये है क्या? थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट सर, आई कैन नॉट रिकॉल इट राइट ठीक है, आपने कहा कि आप विदेश सेवा में जाना चाहेंगे। नाउ। यस सर। भारतीय इतिहास में सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि, इंटरनेशनल ट्रीटी, कौन सी याद आती है आपको? सर यूएन ट्रीटी। इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इंडियन हिस्ट्री। जितना बैक आप जा सकते हो। जितना बैक आप जा सकते। सर वियना। और पेरिस ट्रीटी। ठीक है। नाटो। थैंक यू। फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड, श्रद्धा। जैसे आपने अपने हॉबीज़ में भी लिखा है कि आपको डांस परफॉर्म करना पसंद है, तो किस तरह का डांस आप परफॉर्म करना? सर इट्स नॉट एनी प्रोफेशनल काइंड ऑफ डांसिंग, इट्स जस्ट द नॉर्मल डांस दैट वी डू अपार्ट कैजुअल डांसिंग। Okay, again, casual dance. So, what are the classical dances of India? सर भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, देन घूमर एंड भंगड़ा। क्लासिकल प्रॉपर जो Kathak? कथक, या आई टोल्ड कथक, एंड मणिपुरी, सत्रिया फ्रॉम असम, एंड Amongst these dances, which one of them was patronized by Rabindranath Tagore? Rabindranath Tagore. Sir, I think it was sir, I'm not aware of that. Ikigai का आपने नाम लिया कि आपने Ikigai book पढ़ी है. एक बार पढ़ी थी. Which philosophy is it based on? Sir, Ikigai is basically based on the philosophy. I don't recall the word. Japanese. Yes, it's a Japanese book, and it talks about the people of Okinawa. There's an island Okinawa जहाँ पे लोगों की जो उम्र थी वो they were centenarians basically. They were living 200 years. तो people you wanted to study कि इनकी lifestyle ऐसी क्या थी that led them to be living 100 years.
तो उसके बारे में इस बुक को बताया गया है। इसमें आपकी लिविंग हैबिट्स को, लाइफस्टाइल पैटर्न्स को, किस तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधार सकते हो। तो उसमें से ऐसी एक चीज़ जो आपने लर्न की हो और आपको लगता है कि वो आपको अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करनी चाहिए? सर, एक चीज़ जो मैंने लर्न की उस बुक से वो था पेशेंस। उस बुक पे लिखा गया है कि यू नीड टू बी पेशेंट विद व्हाट यू आर डूइंग, और दूसरा कम्युनिटी के साथ आपका जो रिलेशनशिप होता है उसको कैसे मेंटेन करना है। उन्होंने बोला कि आपकी लाइफस्टाइल में आपकी कम्युनिटी का एक बहुत मेजर रोल है, किस तरीके से आप रेगुलरली मिल रहे हैं, अपनी कम्युनिटी वालों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस चीज़ को आपको सीखना चाहिए। एंड दैट वाज समथिंग आई लर्न बिकॉज बिफोर दैट आई वाज एन इंट्रोवर्ट पर्सन, and now I feel कि I try sometimes to communicate with the people I'm living around, and I make sure that I'm having a healthy, good environment around me so that I could learn good things from the people I'm living with. One last question, Shraddha. How does meditation helps in reinforcing patience? Okay, sir. So meditation is something where you sit silent and calm your mind. जब माइंड आप काम करते हो तो पेशेंस आपको एक फील करने को मिलता है। लाइक यूजुअली व्हेन वी डू मेडिटेट वी सिट, वी क्लोज आवर आइज एंड वी जस्ट सिट आइडली। तो आप जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपना माइंड को शांत कर रहे हैं, तो यू get that ability of calmness in yourself, and patience is something that needs calmness of mind. When you're calm from your mind you can be patient. तो आई थिंक कि उस तरीके से हम अपने माइंड से को मतलब ट्रीट कर सकते हैं, एंड इट विल हेल्प अस टू बी पेशेंट। Thank you, Shraddha. श्रद्धा, एक लास्ट क्वेश्चन। सोशियोलॉजी आपका है ना, ऑप्शनल है। आपने लीडर्स की बात की ना, आपने कहा कि भाई आपने नॉर्थ कोरिया की बात की ना, सुप्रीम लीडर की, कि आपके हिसाब से वो लीडर नहीं है। आपको क्या लगता है, लीडर्स आर बॉर्न और आर दे मेड? So they are made. Nobody is born as a leader. एज ए लीडर दे आर मेड। Yes, sir. You need to work hard more than the others. Only then you can become a leader. अगर आप जितनी सब मेहनत कर रहे हो उतनी ही मेहनत आप कर रहे हैं, then you can never be one. And if you want to be a leader, you need to work even. लीडर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी कौन सी है? So लीडर में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी लीडरशिप स्किल तो होनी ही चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए। उसके अलावा ही मस्ट नॉट हैव एन ईगो, कि अगर मान लो कोई काम है, मेरी एक टीम है, मैं लीडर हूँ और हमें एक टास्क दिया गया है, तो इवन दो आई विल मैनेज कि मैं मेरा काम सारा डाइवर्ट कर सकूँ अपने टीममेट्स के साथ में, बट इवन दो इफ़ आई थिंक कि इस काम में अभी भी कोई कमी है, देन आई विल बी द पर्सन हु नीड्स टू वर्क ऑन दैट। If others are working for 3 hours, I need to work for 3.5 hours and make it happen. लीडर मैनेजर में क्या फ़र्क है? सर, मैनेजर वो होता है जो चीज़ों को मैनेज करता है, कि कोई काम दिया गया है और आप उसे कैसे कर रहे हो, मतलब कैसे आप उसे डिवाइड कर रहे हो। लीडर वो होता है जो सबको साथ लेके चलता है, उन्हें मोटिवेट भी करता है कुछ काम करने के लिए, एंड हेल्प्स देम टू गिव देयर बेस्ट टू देयर टीम। सो दैट इज़ वन क्वालिटी ऑफ लीडर। स्टेटस है लीडर, जैसे आप भाई आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, तो ऑटोमेटिकली यू बिकम अ लीडर आपके नीचे वालों के लिए। Yes, sir. Sir, that is maybe because when we sit for this examination, when we get the job, we give all our hard work, all our discipline here. So we have that mindset कि हाँ, अगर हमने बाकियों से ज़्यादा मेहनत करके एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, that means we deserve that leadership quality there. It's not just by chance कि हमें title मिल गया, so we will become a leader. We have worked hard for that leadership. Thank you, sir. Can I leave? Yes, sir. एक स्टेटमेंट है कि विदेश नीति अंततः देश नीति होती है। समझे आप मेरी बात? So can you? फॉरेन पॉलिसी अल्टीमेटली ऐसी पॉलिसी होती है जो स्टेट के फेवर में होती है, Yes, sir. उसी को फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। Yes, sir. इससे आप एग्री करते हैं? Yes, sir. उससे फिर क्या प्रॉब्लम है आपको? सर, फॉरेन पॉलिसी बेसिकली स्टेट पॉलिसी होती है ओनली इन अनटिल अनलेस यू नॉट हर्टिंग अदर्स। वी हैव हमारे जो जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए, तो उसके अंदर डिप्लोमेसी को इस तरीके से बताया गया है कि नो नेशन इज़ फ्रेंड एंड नो नेशन इज़ एनिमी, ऑल आर योर फ्रेंड्स एंड ऑल आर योर एनिमी। डिसआर्ममेंट को फेवर करते हैं आप? सॉरी सर? Disarmament. डिसआर्मामेंट नहीं सर। इफ़ यू नीड टू बी प्रोटेक्टेड यू नीड सम वेपन्स। इंडिया का क्या पॉलिसी है इसको लेकर? डिसआर्मामेंट को लेके किसी के पास वेपन है ही नहीं, तो किसी के भी पास नहीं है।
सर इस एरा में जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स का इन्वेंशन हो चुका है, अगर आपके पास वेपन्स नहीं है देन यू नीड टू बी अ सप्रेसिव स्टेट. आई मीन यू नीड टू बी सप्रेस्ड. आप हमेशा सप्रेस होंगे, यू विल नेवर बी एबल टू हैव योर ओन स्टैंड. इंडिया आज इतना डेवलप जो आगे कर पाया, इतना आगे पहुँच पाया, इट वॉज बिकॉज वी वर्कड ऑन आवर सेल्स. हमने वो सब चीज़ें हमारे, अगर न्यूक्लियर वेपन की भी बात करी जाए तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट इज़ डिस्ट्रक्टिव फॉर द ह्यूमैनिटी. But still, every country is running to have that weapon in with themselves, so that they can just make sure that they are not suppressed by the other nations. So I think we need to have arms. उसका usage कहाँ करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर you need to be a little compassionate. That's my opinion. श्रद्धा, आपने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दी है? It was my very first hit. वेरी फर्स्ट इंटरव्यू. आपके प्रीलिम्स में कितने नंबर आए हैं? So 101. 101. आई थिंक मतलब बाकी लोगों से एक होता है ना, आपका आई कांटेक्ट तो ठीक है, कॉन्फिडेंस भी ठीक है. कॉन्फिडेंस वहाँ पे मात खा जाता है जहाँ पे हमें खुद को मालूम है कि हमारे पास कंटेंट नहीं है, और वो उस चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा कंटेंट के ऊपर थोड़ा सा. और चूंकि फर्स्ट इंटरव्यू है, कोई भी आपकी है ना सीट में होगा, वो कुछ डूज एंड डोंट्स का उसको पता नहीं होता है, तो वो आपको भी नहीं मालूम है कि भाई अब नेक्स्ट टाइम आप बेटर करोगे. तो एक तो जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, एक जो वर्ड कैजुअल है ना, ये हम लोग कहीं यूज़ नहीं कर सकते. अपने फॉर्म में, अपने बोलने के जो है ना उसमें संवाद में हम लोग कह देते हैं, बट यहाँ कैजुअल लिखना एक तरह से एक सिविल सर्वेंट का कैजुअल होना या किसी भी सर्वेंट का कैजुअल होना, गवर्नमेंट सर्वेंट का, वो अप्रिशिएबल नहीं है. तो ये वर्ड आप कैजुअल हटाना, पहली लर्निंग तो आपकी यही है. आपने जैसे कहा ना डांसिंग इन लीजर टाइम, कैजुअल, कैजुअल शब्द बहुत घातक शब्द है प्रोफेशनल सेटिंग के अंदर. वो एक चीज़ है जो आपको चूंकि पता नहीं है, तो दैट्स व्हाई यू रिटन. थोड़ा सा इस पे वर्क करना अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे. डांसिंग अगर आप करते हो, कोई पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म करते हो? Yes sir, I have learned. जैसे मैंने हिप हॉप सीखा है, क्रम्पिंग एक डांस फॉर्म होती है, आई हैव लर्न दैट. उसके बारे में फिर आपको विकीपीडिया वगैरह पे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप देखना, उस पर एक्स्ट्रा आपको वर्क करना पड़ेगा. ये जो आपने एट्रोसिटीज़ वाला लिखा ना, मैं कुछ और सेंस में सोच रहा था, लेकिन फिर आपने बताया कि ये विमेन ओरिएंटेड. Not just women oriented, women, education, sanitation and animal welfare, street animal welfare. स्ट्रीट एनिमल वेलफेयर, ठीक है. तो एट्रोसिटीज़ तो नहीं कहूँगा मैं इसको, जो भी इसके लिए प्रॉपर टर्म है ना, डेप्रीवेशन है या जो भी है ना, आप इसमें देख लेना. और थोड़ा सा जो आपने चीज़ें इसमें लिखी हैं उसी से क्वेश्चन निकल के आए हैं, उसी से हमने आपसे पूछे हैं, तो उस पर आप वर्क करो. और ये जो फिजिक्स की बेसिक डेफिनेशंस है ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, वर्क क्या होता है, कैजुअल सेंस में नहीं, फिजिक्स के सेंस में, टेक्निकल सेंस में, इस पर अपने को थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा ना. आपके आंसर थोड़े से हेवायरी थे फिजिक्स को लेके, तो कुछ आंसर्स तो ठीक हैं आपके, कुछ में अपने को कंटेंट पे काम करना पड़ेगा और रीडिंग करना पड़ेगा. उसके लिए आपको न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल सेक्शन आता है ना किसी भी न्यूज़पेपर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और स्पेशली आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप तो जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, उसमें जैसे भानु प्रताप मेहता के आर्टिकल्स आते हैं, है ना, उदय शंकर इस तरह से एक नाम है उनका, उनके आर्टिकल्स आते हैं. तो ये आप पढ़ो और थोड़ा सा डेप्थ में लाओ. अभी हम लोग क्या अपने कॉमन सेंस से ही काम चला रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट है, मे बी थोड़ा डेप्थ लाना पड़ेगा. ठीक है, बाकी सर बताएंगे. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट श्रद्धा, आप जब एंटर हुए तो बैठने के पहले आपको एक बार पूछ लेना चाहिए. Okay sir. यू एंटर्ड विद द परमिशन, दैट वाज ओके, बट देन जैसे ही आप बैठे तो आप अपने हिसाब से बैठ गए. यू शुड हैव टेकन परमिशन. सेकेंड थिंग, एक आपने जब सर ने कोई क्वेश्चन किया था बीच में, तो आपने वो क्वेश्चन को खुद रिपीट कर दिया. Okay, हाँ. अवॉइड डूइंग दिस. अगर आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए, वो क्वेश्चन रिपीट करके कोई फ़ायदा होता नहीं है. वो एक्चुअली आप अपने आप को प्रोसेस कर रहे हो उस क्वेश्चन को. तो टेक अ मोमेंट, दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप सोचने के लिए समय ले रहे हो तो. लेकिन वो क्वेश्चन रिपीट करने का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा से टरकाते हैं, जैसे बोलते हैं ना, ठीक है अच्छा आप ही की क्वेश्चन को अगर रिपीट करके मैं खुद को समझा लूँ, वो चीज़. दो तीन चीज़ें जो मुझे लगा कि आपको नहीं करनी चाहिए, जैसे आपका एक सेंटेंस है बार बार आप यूज़ करते हैं बीच में, आई गेस, यू नो.
अगर हमको सब पता होता तो हम इंटरव्यू नहीं ले रहे होते, और अगर आपको गेस करना पड़े तो फिर इसका मतलब फर्मनेस कम है। तो कहीं भी किसी भी सेंटेंस फॉर्मुलेशन में जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप जवाब दे रहे हो, तो वहाँ गेस गेम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बी फर्म विद योर आंसर्स, टेक योर टाइम, और थोड़ा सा ठहराव लाने की ज़रूरत है ना। आप जब भी, क्योंकि आप लगातार एग्जामिनर को या इंटरव्यूअर को जवाब देते जाओगे तो वो जवाबों पे सवाल करते जाएगा। आप जितनी तेज़ी से जवाब देते जाओगे उतनी तेज़ी से क्वेश्चंस भी आपके डायरेक्शंस में आते जाएंगे। थोड़ा सा ठहराव लाओ, थोड़ा सा पॉजेस दो बीच बीच में, है ना, बोलते समय। और कोई भी क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लो कि ओके, इन्होंने ये पूछा है और हो सकता है इसके पीछे का ये इंटेंशन हो, तो मुझे इस पूरे आंसर में मुझे क्या नहीं बोलना। अब जैसे वर्क आया, एनर्जी आया, पावर आया, आप उसमें उलझते गए, और वो उलझने का कारण ये था कि आप उसको प्रोसेस आउट नहीं कर पाए कि ये कहाँ तक ले जाएंगे आपको। तो उसको थोड़ा सा प्रोसेस करने के लिए थोड़ा सा ठहराव ज़रूरी है कि आपके जवाब में भी ऐसी कोई टर्म नहीं आ जाए जो आप ही को बाद में उलझा दे, क्योंकि आप लगातार जवाब देते जाओगे और हम उसी में से सवाल क्रिएट करते जाएंगे। तो आपके आंसर्स को आपको ठीक से फ्रेम करना है। एक ये थोड़ा सा डिफेंसिव पोस्चर जो है, इसको डिफेंसिव ना रखते हुए कीप योर आर्म्स वेरी स्ट्रेट, आराम से रखो उसको। थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाते हो आप जब थोड़ा सा गड़बड़ होने लग जाती है, तो ये भी ऐसा ऐसा चलता रहता है, तो अवॉइड डूइंग दैट। बाकी बहुत अच्छी चीज़ तो इन सब में ये भी थी कि आपने बड़ा कॉन्फिडेंटली आंसर किया चीज़ों को, डिस्पाइट इट वाज योर फर्स्ट इंटरव्यू। द फ्लो ऑफ द लैंग्वेज, द फ्लो जिस तरह से आपने चीज़ों को प्रेजेंट किया, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि आपका पहला अटेम्प्ट है। अगर आप मेंशन नहीं भी करते तब भी ये बात गेस करना बड़ा मुश्किल था कि आपका पहला अटेम्प्ट और पहला इंटरव्यू है। एंड कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, थोड़ा सा डेप्थ आएगा रीडिंग में, थोड़ा सा अपने डैफ पे अगर आप काम कर लोगे, थोड़े सब्जेक्ट्स पे अगर आपका जो एक्सपर्टीज़ है अगर आपने उस पर थोड़ा काम कर लिया, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। Thank you, sir. श्रद्धा, बाकी सारा तो बता दिया सर ने। दो तीन चीज़ें हैं। एक तो अननेसेसरीली किसी भी आंसर को स्ट्रेच मत करो, पॉइंट टू पॉइंट, जितना पूछा उतना। दूसरी चीज़, जैसे आपने ये जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतनी सारी चीज़ें लिखी है, तो ये मान लो कि आपने हमें बहुत सारा दे दिया पूछने के लिए। जितना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, उतने ज़्यादा आपके कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आदमी के एक्शन से समझ में आनी चाहिए, उसके बोलने से। आप खुद कह रहे हो कि मैं हाउस कैप्टन भी रही हूँ, प्रेसिडेंट भी रही हूँ, ठीक है, ठीक बात है, रहे हो, मेंशन करना चाहिए, लेकिन फिर इसके बारे में आपको डिटेल पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जिन पोजीशंस को आप होल्ड कर रहे हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है, और उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती कि आप ऊपर नीचे कर दें, ठीक है। और एक ऑनर से हो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके ठीक होने चाहिए। Yes, sir. I'll really. कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जो रॉकेट साइंस का हो, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस थे, उनमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। कोई टफ आंसर नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन इजी चीज़ ना आए तो दिक्कत है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जो मुझे लगा, बाकी पैनलिस्ट शायद डिफरेंट ओपिनियन रख सकते हैं। आपने लैंग्वेज अपने हिसाब से स्विच कर ली। फॉर एग्जांपल, सर ने आपसे कोई सवाल हिंदी में पूछा तो आप उसका हिंदी में ही जवाब दो। आपने कई बार ऐसा किया कि आपने शुरुआत किया इंग्लिश में, और फिर आप अपने आप को जब एक्सप्लेन करना चाहे तो आपने अपना लैंग्वेज स्विच कर लिया ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला, तो फॉर एग्जांपल के साथ में अपना एग्जांपल आपने हिंदी में स्टार्ट कर दिया। तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, और जिस भाषा में पूछा जा रहा है उस भाषा में ही आप अगर आप जवाब दो और उसको कंसिस्टेंटली वही मेंटेन करके दो, तो दोनों तरीके की चीज़ें पैनल को समझ आती है, इंटरव्यू बोर्ड को समझ आती है कि पॉइंट नंबर 1 कि आप ये समझ पा रहे हो कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और आपने बिल्कुल वैसी ही भाषा में समझा दिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन आस्क यू कि मुझे वैशाली नगर जाना है तो साहब मैं कहाँ से जाऊँ, तो आप बोलोगे गो टू द राइट एंड देन टेक द नेक्स्ट लेफ्ट एंड देन, तो वो उसको समझ ही नहीं आ रहा। आपको उस भाषा में उसको समझाना पड़ेगा जिस भाषा में वो समझते हैं। और अगर आप बीच में इंटरमिंगल करते हो लैंग्वेज को, तो वो भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन नहीं होता। ट्राई टू बी कंसिस्टेंट विद द लैंग्वेज।
एक मुझे याद आया, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना, यूटी की डेफिनेशन आप देख लो, है ना, यूटी वालों के लिए तो एगमेट है ही कैडर, बाकी सारे स्टेट्स हैं ही। तो और दूसरा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मे बी अब तो आपने भर दिया है, सर्विस प्रेफरेंस आपने किससे भरवाया है? आपने खुद ने भरा है ना, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो आप जो भी सिलेक्टेड लोग हैं या जो थोड़े से है ना, कोई कोचिंग में जैसे सर हैं या वेर एवर, है ना, आप जिससे भी आपका इंटरेक्शन है, उनको आप नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो फॉर सर्विस प्रेफरेंसेस ना, अगर होता है, अगर आपका नेक्स्ट टाइम अगर आपका इसी साल सिलेक्शन है तो इट्स डिफरेंट मैटर। नेक्स्ट टाइम अगर आप भरते हैं तो सर्विस प्रेफरेंस केयरफुली, है ना, आपकी सारी मेहनत बेकार है अगर अपन ने उसको अल्टीमेटली, बहुत रेंडम है, 5वें नंबर पे ये AFHQ वाला भरा आपने सेक्शन। सर एक्चुअली ये मेरा मैंने ये सोचा कि जो मेरा इंटरेस्ट है, जहाँ मैं काम करना चाहती हूँ, मैं उसी हिसाब से उस चीज़ को भरूँ, तो फिर मैंने वो उस अकॉर्डिंग भर दिया। भाई IRS सबसे ऊपर आपने ये, है ना, सेक्शन ऑफिसर वाली ग्रेड भरी है, ठीक है, तो ऊपर तक तो ठीक है, 3 तो। अब आपने देखो IFS भरा है, फिर आपने IPS भरा है, फिर आपने IAS भरा है, ये भी मेरे समझ में नहीं आया। IFS आपने पहले भर दिया, वेल एंड गुड, IPS आपने पहले भर दिया, वेल एंड गुड, लेकिन सेकंड नंबर पे तो फिर सडनली IPS कहाँ से, आई डोंट नो। सर इट्स जस्ट द चॉइस ऑफ जॉब दैट आई वांट टू गेट इन। नागालैंड यूटी नहीं है। हाँ, यूटी नहीं है ना, यूटी वालों में तो एगमेट कैडर है ही ना, इसमें एगमेट लिखा है ना इसके अंदर, आपने अगर ध्यान से देखा हो, बाकी तो सारे स्टेट ही है इसमें। यस सर। कोई इशू नहीं है, ये तो क्या कई बार बोलने में हम लोग जल्दबाजी में बोल जाते हैं, Sir, it kind डर of- जाते हैं। ठहराव, बस में क्यों ठहराव लोगे तो दिक्कत नहीं है, थोड़ा ठहराव। सर तो ये सजेशन है, बाकी इट्स गुड, है ना, एज ए फर्स्ट टाइमर आपका बहुत अच्छा ना इंप्रेशन है बोर्ड के ऊपर। ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।